Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the new lecture in Introduction to Embedded Systems course. This topic deals with another microcontroller, that is PIC. We will be dealing with PIC 16F84A microcontroller. As you all know that we have already studied 8051 controller, and also we have studied AVR 80 Mega 328 microcontroller, which has been used in Arduino board. We have seen already that how can we program a controller in an assembly language, as well as we have also seen that how can we program it in a C language. So from today onwards we are at the last half of our course, last section of the course, in which we will see that how we can program the PIC microcontroller. The question that comes into our mind once we see this topic, that why are we studying the PIC microcontroller? We are studying the PIC microcontroller, as I've told you earlier in the start of the course, that this microcontroller is being used in industry for the development of solutions, for the development of the embedded systems. As I've told you that Arduino is basically a board in which you can try out your codes, in which you can run your codes, but you cannot make a proper embedded system using that. Initially we start with an assembly language so that you know that how things act at a low level, then we head towards the C language and we see how things are done at a little higher level, that is by using Arduino board. And now we will see that how are things done at an industrial level, right? So using this controller, studying this controller, programming this controller, and interfacing this controller will help us to understand that how a complete embedded system exists and how does it work. Inshallah, with respect to the time also, it depends that how much we will go far in this controller. We will be going to study that how we can program its input and output channels in C language, how can we program it with its serial its how can we make it perform the communication serially with other devices, and how can we program its timer, how can we program its interrupts. We will going to see all these specs, and we will be doing this by using C language, first thing. And the second thing, I would be using the book PIC microcontroller by Mazidi, and this book you can be find at internet as also. So we will be solving the numericals, the programming examples from that book. Okay, so let's go ahead and let's see what does this lesson says. Lessons basically deals with the introductory part of the PIC microcontroller. So what is a PIC microcontroller? It is being developed by Microchip company, right? So like we have other microcontrollers, we have already seen 8051, which has been developed by Intel. We have seen 80 Mega 328, which has been divided by AVR, which has been later been taken by another company. Now we are basically studying the microchip based controller, which is called PIC, and PIC stands for Peripheral Interface Microcontroller. Okay, so this is the full form of the PIC microcontroller, and these microcontrollers are almost economical, they are functional, they are simple to discover. So let's see how we do this. So if I talk about 16F84A, and if I look upon its data sheet, I will be going to find out that it's a very beginner microcontroller, right? Why we are calling it a beginner's microcontroller? Because it has a very less number of registers, it has a very less number of instructions, it has a very less number of ports, very less number of timers, and timers, your counters, modules. So that is why it's a very beginner's microcontroller. That's why I have taken an example to make you guys understand that how this controller works, right? So it contains high performance RISC CPU. RISC, what does a RISC mean? I hope you guys have already understood this term while solving your assignment of 80 AVR 80 Mega 328. RISC stands for Reduced Instruction Set Computer, which means that it has a very less instructions, very few instructions. To be exact, there are just 35 instructions in this microcontroller. It's 16F84A, and by means of 35 instructions means that by using those instructions, those 35 instructions, you can simply perform anything you want. They will be very simple instructions, they are not very complex instructions, and by reducing the complexity level, we are actually promoting a high frequency performance of the controller, right? हम basically वो instructions इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हमने इसलिए रखी हैं
ताकि हम परफॉर्मेंस वाइज इससे अच्छा कर सकें. अगर इफ़ यू आर यूजिंग द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस देन व्हाट हैपन इज दोज इंस्ट्रक्शंस विल एग्जीक्यूट इन मल्टीपल साइकिल्स, राइट. अगर मैं कोई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन यूज़ करती हूँ जो कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल साइकिल्स में इंप्लीमेंट हो रही है, so that would be a problem for me and it will slower down the performance of my respective controller, right. So that is the reason what we have done is we have reduced the instruction set architecture and we are just using 35 instructions and each instructions is just taking one cycle to complete its task except the branch instructions. Branch instructions को छोड़ के बाकी सारी instructions हैं वो एक एक cycle में हो रही हैं and that means that the instruction is less complex, they are reduced, hence they are reduced in the size as well. As you can see that each size of the instruction is 8 bit. So इससे क्या होगा हमारी overall performance बहुत अच्छी हो जाएगी. वी हैव अ हाई परफॉर्मेंस सीपीयू, ठीक है. तो RISC का मतलब क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज में इसके 35 इंस्ट्रक्शंस के कीवर्ड्स होंगे. जैसे आपने 8051 में मुख्तलिफ किस्म के पढ़े, ऐड पढ़ा, सब पढ़ा, यू हैव स्टार्टेड एल जंप, एल कॉल, मूव, दीज इंस्ट्रक्शंस. इसका उसका अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट था, इसका अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होगा जो कि इसकी डेटा शीट में लिखा हुआ होगा. सो दिस इज जस्ट 32 और 35 इंस्ट्रक्शंस टोटल. तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस वैसे ही हैं जो कि एक साइकिल में इंप्लीमेंट होंगी एक्सेप्ट द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के ब्रांच का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपकी जो है वो दो इफ़ एल्स की फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन होगी तो मैं ये वाला पाथ फॉलो करूँगा, अदरवाइज मैं कोई दूसरा पाथ फॉलो करूँगा. सो दोज इंस्ट्रक्शंस विल बी टेकिंग मोर देन अ साइकिल टू इम्प्लीमेंट. और ये जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आपकी हैं ये यूजुअली हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका 8 बिट है. मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दैट वी कैन गो विद दिस कंट्रोलर इज़ एक्चुअली 20 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है. आप अगर फुल 20 मेगाहर्ट्ज़ पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग द फुल पावर, यू आर यूटिलाइजिंग इट्स फुल परफॉर्मेंस. तो आप इसको लोअर फ्रिक्वेंसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं ताकि आप थोड़ी पावर को सेव कर सकें, ठीक है. गाइज वन मोर थिंग दैट ऑल दीज सेंटेंसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम योर डेटा शीट, ठीक है. अगर आप 16F848 की डेटा शीट खोलते हैं तो यू कैन सी ऑल दीज लाइन्स देयर, दे आर जस्ट कॉपीड फ्रॉम देयर, ताकि हमें थोड़ा सा डेटा शीट को पढ़ना भी आए और हमें समझना भी आए कि अब तक जो हमने एक कंट्रोलर्स पढ़े हैं तो हम कितनी डेटा शीट समझ सकते हैं, राइट. इट इज़ अ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर. 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या है मैंने आपको पहले भी 8051 में एक्सप्लेन किया था कि एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड 8 बिट कंट्रोलर, 16 बिट कंट्रोलर, दैट मीन्स दिस इज सिग्निफाइंग द साइज ऑफ द डेटा बस, ठीक है. तो इसकी जो डेटा बस का साइज है दैट इज़ बेसिकली 8 बिट्स, ठीक है. एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस रजिस्टर्स आर ऑल्सो 8 बिट वाइड, राइट. इट हैज़ 1024 वर्ड्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आपके पास अगर मैं इस मेमोरी को ड्रॉ करना चाहूँ तो टोटल वर्ड्स इसमें जो हैं वो कितने आ रहे हैं, 1024 आ रहे हैं. 1024 का मतलब क्या है, 2 की पावर 10, ठीक है. तो यानी कि इसमें टोटल 2 की इतनी प्लेसेस हैं. 1024 वर्ड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ सिंपल एप्लीकेशन then 1024 words of program memory is enough, ठीक है. and this is where the pick controller is frequently being used. तो आपके पास 1024 words का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है. आप यहाँ पे प्रोग्राम एक लिख सकते हैं. दिस इज़ अ प्रोग्राम मेमोरी, इट्स नॉट द डेटा मेमोरी, इट्स अ प्रोग्राम मेमोरी. तो अगर आपका इतना सा प्रोग्राम है वो इतनी ही स्पेस ले रहा है, सो दिस माइक्रो कंट्रोलर सर्व्स योर पर्पस. लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, सिंगल पिन करंट सोर्सिंग एंड सिंकिंग लिमिट इज़ 25 मिली एम्पेयर्स. अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग. होपफुली आपको पहले से पता होगा कि व्हाट आर दीज थिंग्स, बट होता क्या है जिनको हजरात को नहीं पता उनके लिए डिस्कस कर लेते हैं. करंट सोर्सिंग क्या होती है कि इफ़ दिस इज़ योर कंट्रोलर, लेट मी मेक अ स्पेस फॉर द कंट्रोलर. okay, so if we make a controller here, this is your pick controller, ठीक है. अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपने जहन में अपने ये ज़रूर रखना है कि यार हमने जो चीज़ें 8051 में पढ़ी थी ये मोरलेस वैसे ही हैं, सिर्फ इसमें एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. पुरानी चीज़ें हमने ख़त्म नहीं की हैं. जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी वो हमने मे बी वैनिश कर दी हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर द सेम, राइट. तो करंट सोर्सिंग का मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ पे एक अदद एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई LED लगाई हुई है या कोई आपने एक अदद बजर लगाया हुआ, एनीथिंग,
और आपने इसको ग्राउंड कर दिया। तो अब क्या है कि ये आपका कंट्रोलर, जब आप इसको लॉजिक हाई देंगे तो ये एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी, राइट, और आपका करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। सो व्हेन एवर योर कंट्रोलर इज गिविंग द करंट टू द लोड, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, व्हेन एवर योर करंट इज गिवन बाय द कंट्रोलर टू द लोड, दिस इज कॉल्ड करंट सोर्सिंग, यानी कि आपका ये बंदा सोर्स कर रहा है करंट, इट इज़ प्रोवाइडिंग द करंट, इट इज़ सोर्सिंग द करंट, इट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द करंट, ठीक है। अगर मैं इसी सिनारियो को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, नाउ इफ़ आई ड्रॉ अनदर पिक कंट्रोलर, राइट, and in this pic controller if I simply reverse the direction of LED, और अब मैं यहाँ पे एक अदद ऊपर 5 वोल्ट्स कनेक्ट कर देती हूँ। नाउ इफ़ आई अप्लाई हेयर 1, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा बिकॉज ये भी 5 है, ये भी 5 है। इफ़ अप्लाई 0, तो होगा क्या कि अब आपका यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ जाएगा थ्रू द लोड इन टू योर कंट्रोलर, राइट, it is going from this power supply to the load is LED to your pic controller, so this is now called करंट सिंकिंग। कि अब आपका जो करंट की जो सिंक क्या होता है, जहाँ पे हमारा पानी इट्स लाइक इट्स गोइंग डाउनवर्ड टू सम स्पेस, ठीक है, तो ये सिंक हो रहा है, यानी कि पानी यहाँ से आपने अपना टैप ऑन किया था और ये फाइनली यहाँ पे जाके सिंक हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंकिंग, दिस इज़ कॉल्ड सोर्सिंग, ठीक है। सो इसमें जो सिंकिंग और सोर्सिंग करंट की जो लिमिट है दैट इज़ बेसिकली 25 मिली एम्पेयर्स, राइट, इससे ज़्यादा ना ये सिंक कर सकता है ना सोर्स कर सकता है। सो दिस इज़ द आई थिंक आपकी मोर देन इनफ है फॉर मैनी ऑफ योर डिवाइसेस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ओवरऑल। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक अदद पिन नंबर 1 पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब दैट्स योर पिन नंबर 1, एंड फिर हम डिफरेंट चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब अगर हम थोड़ा सा अपना पुराना रिकॉल करते हैं जो हमने 8051 में पढ़ा है, हमने AVR 80 मेगा 328 में पढ़ा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर सिमिलर, क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी देम फर्स्ट। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक मेरे पास जो है वो, लेट्स मी टेक अ पेन, अगर मैं देखूँ तो एक A0 है, एक A1 है, A2 है, A3 है एंड A4 है। सो आई थिंक दिस इज़ माई पोर्ट A। नाम डिफरेंट है, सिर्फ R लग गया, बट एवरीथिंग इज़ द सेम। बाकी पोर्ट A0 1 2 3 4 है। सो आई कैन से दिस इज़ माई पोर्ट A, ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स एट 4। सो ऑल टुगेदर देयर आर हाउ मेनी पिन्स, देयर आर 5 पिन्स, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि वी हैव हेयर 5 पिन्स, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि और इसमें हमारे पास क्या, एक और हमें बी कुछ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ RB1, RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 and RB5, RB6 and RB7. So here we have around 8 pins जो कि हमें पोर्ट B की नज़र आ रही हैं। सो बिल्कुल 8051 की तरह वहाँ हमने पोर्ट्स को 1 2 3 4 लेबल किया था, यहाँ पोर्ट्स जो हैं वो AB लेबल्ड हुए हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। सो पोर्ट B है हमारे पास एंड स्टार्ट्स फ्रॉम पिन नंबर 0 एंड इट एंड्स एट पिन नंबर 7, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो टोटल पिन्स हैं वो देयर आर 8, राइट। तो अभी तक कुछ चीज़ें पुरानी सब नज़र आ रही हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा और गौर करें अपनी रिमेनिंग पिन्स के ऊपर, तो वी हैव बेसिकली क्लॉक की पिन्स हैं, हमें ऑसिलेटर की 2 पिन्स होती हैं। वी कैन सी दैट इंदर पे हम अपना क्रिस्टल लगा देंगे इन दोनों के दरमियान। और अगर आप जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम 8051 में भी अगर अपना ऑसिलोस्कोप की पिन रखते हैं तो वी कैन सी द क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो सिमिलरली आप अगर यहाँ पे अपनी क्लॉक की फ्रिक्वेंसी पिन नंबर 15 पे रखेंगे इस जगह पे, तो यू कैन सी योर क्लॉक फ्रिक्वेंसी एज वेल। तो 2 पिनें तो हमारी क्लॉक की हो गई। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लॉक और यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल होगा, ठीक है, एक क्रिस्टल लगा हुआ होगा। वही सेम चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पहले पढ़ी थी। फिर एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ लिखी हुई, दैट इज़ बेसिकली द VDD। सो VDD इज़ आवर पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हम उसको 5 वोल्ट्स दे देंगे, जो भी इसका क्या कहते हैं होना चाहिए इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, वो हमने यहाँ पे इसको दिया। VSS इज़ सॉरी, VSS इज़ बेसिकली द सो ओके, VSS इज़ बेसिकली द ग्राउंड, जो आप अपनी क्या कहते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपकी बैटरी जो है वो कुछ इस तरीके से लगी हुई है, दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड, दिस इज़ अ नेगेटिव एंड, तो पॉजिटिव एंड जाके कनेक्ट हो जाएगा पिन नंबर 14 पे, ठीक है, और ये जो नेगेटिव एंड है ये जाके कनेक्ट हो जाएगा पिन नंबर 5 पे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक इट कनेक्टेड, राइट। अच्छा जी, और हमें कौन सी पिन नज़र आ रही है, हमें एक एम क्लियर की पिन नज़र आ रही है। एंड एम क्लियर भी हमारा कुछ जाना क्लियर तो हमें जाना पहचाना नज़र आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस एम, दिस इज़ बेसिकली आर मेमरी क्लियर,
ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जो है वो वी हैव हेयर, लेट मी टेक अ पेन, ओके, वी हैव हेयर अ मेमोरी क्लियर है हमारे पास, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी एंड सी एल आर स्टैंड्स फॉर क्लियर। सो दिस इज़ बेसिकली मेमोरी क्लियर, यानी कि अगेन अगर मैं आसान अल्फाजों में बोलूँ तो दिस इज़ जस्ट अ रीसेट, और तो कुछ भी नहीं है ना। ये सब चीज़ें देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमने इसमें से कोई भी अभी तक चीज़ ऐसी नहीं आई जो अभी तक नहीं पढ़ी हुई है। ये सब चीज़ें 8051 में आपकी मौजूद थी। अच्छा, अब हम देखते हैं जो स्लैश के बाद चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ये लिखी हुई है INT और एक ये लिखी हुई है, तो ये भी हमारे जाने पहचाने ही है, T0CK1 इज टाइमर 0 एंड योर INT इज इंटरप्ट। वेरी नाइस, जिन लोगों ने गैस सही किया था, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। नाउ अगर मैं इसकी ओवरऑल पिक्चर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इसमें पोर्ट ए है, पोर्ट बी है, एक 5 पिंस का पोर्ट है, एक हमारे पास 8 पिंस का पोर्ट है, इसके अलावा इसके अंदर एक ग्राउंड है, इसके अंदर एक यू कैन से दैट इट हैज़ पावर की पिंस तो इसमें होती हैं, पावर है, ग्राउंड है, इट हैज़ अ रीसेट है एंड इट हैज़ अ टाइमर। एक ही टाइमर है हमारे पास, और ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि इट्स एन 8 बिट डेटा बस है, इसका मतलब है कि 8 बिट का ही टाइमर होगा, और एक इंटरप्ट है। तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपलर कंट्रोलर है, चीज़ें सारी वही हैं, पोर्ट होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए, क्लॉक होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, उसके अंदर इंटरप्ट्स होने चाहिए, उसके अंदर जो है वो CKI वगैरह आपका होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ हेयर, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इसमें सीरियल कम्युनिकेशन की पिंस नज़र नहीं आ रही, डेफिनेटली देयर आर ऑल्सो देयर, बट अभी हमने राइट नो यहाँ पे शो नहीं किए, ठीक है। सो इट हैज़ 13 GPIO पिन्स। 13 किस तरह से आई, 8 इसकी थी पोर्ट बी की एंड 5 ए की थी, तो 8 + 5 इज़ 13, तो 13 GPIO पिन्स। GPIO का मतलब क्या है, जनरल पर्पज़ IO पिन्स, ठीक है, जनरल पर्पज़ IO पिन्स। एंड ईच पिन कैन बी यूज ईदर एज डिजिटल और इनपुट और डिजिटल आउटपुट। हम इसको डिजिटल इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजिटल आउटपुट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एट अ टाइम या इनपुट की तरह भी काम हो सकता है और आउटपुट की तरह भी हो सकता है, ठीक है। that is also been shown by these bi-directional arrows, ठीक है, ये bi-directional arrows आपको यही बात शो कर रहे हैं। These 13 GPIO pins are shared with port A and port B. Port A consists of 5 pins and port B consists of, it has 8 pins from RB0 to RB7, right? This is all what I have told you before. पिन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं, दिस इज एन एक्टिव लो पिन। एक्टिव लो पिन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर ये वाला मार्क आ रहा है, इट इज नोन एज मेमोरी क्लियर। ऑब्वियसली दिस पिन इज यूज टू रीसेट द डिवाइस वेन एवर इट इज केप्ट लो वाइल कनेक्टिंग टू द ग्राउंड, देन इट रीसेट द डिवाइस, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पिन नंबर 5 यानी कि इस VSS की बात हो रही है, दिस इज द ग्राउंड पिन ऑफ द IC एंड मस्ट बी एसोसिएटेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और द सप्लाई वोल्टेज, जैसे कि अभी हमने आपको शो किया। Then we have pin number 14 जो कि VDD थी, this is the supply pin and must be connected to the positive terminal of the power supply. The operating voltage of this device is 5 volts, तो यहाँ पे आपने 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो यहाँ कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 15 एंड 16 यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है, दिस इज 15 एंड दिस इज 16। देयर इज वेयर क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड, जहाँ पे आपका क्रिस्टल का ऑसिलेटर कनेक्ट होगा एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज इज 20 मेगाहर्ट्ज। You can also use 4 megahertz crystal, but the higher the frequency, the quicker the controller works. Also, at higher frequency, the power consumption is also higher. ठीक है, so you can have variety of frequencies available, but if you are want to a very high performance CPU, then you have to use 20 megahertz. Otherwise, for a lower case, you can also employ 4 megahertz. ठीक है, ये हमारे सामने कुछ वही पिक्चर है, मुझे बड़ी अच्छी गूगल से एक पिक्चर मिली थी, दिस इज़ बाय गूगल इमेजेस, जिसमें हमने एक प्रोटियस के ऊपर ये डेवलप हुआ हुआ है मॉडल, जिसमें आपने एक अदद पे कंट्रोलर है, ठीक है, और उन्होंने एम क्लियर के ऊपर एक देखिए एक रीसेट का सर्किट बनाया हुआ है जो ये आपको ब्लू से शो हो रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट प्रेस्ड तो यहाँ पे 5 वोल्ट्स रीसेट को मिल रहे हैं, इसका मतलब इट इज़ नॉट रीसेट, और जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट पूरा यहाँ पे ट्रैवल करेगा। दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स कि आपका सर्किट रीसेट हो जाएगा। इन दोनों पिंस के ऊपर हमारा वैसे ही क्रिस्टल एक लगा हुआ है जैसे हमने 8051 में पढ़ा था, 7 दो अदद कैपेसिटर्स हैं एंड दे आर ग्राउंडेड। ये सब चीज़ें सेम वही हैं जो हमने 8051 में पढ़ा था। ये आपको यहाँ दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपको ये समझ में आए कि बोथ द थिंग्स आर द सेम, ठीक है, कोई ऐसा बहुत वाइड चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस होंगी बट ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, राइट।
फीचर्स क्या हैं हमारे पास 16F84A के? इट सपोर्ट्स ICSP। ICSP क्या होता है? इट्स इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग ये है कि आपने अपना किसी जो, देखिए मैंने आपको बताया था 8051 के अंदर, आई थिंक आपकी क्लास से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम 8051 को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। आई टोल्ड यू कि इसका एक अदद प्रोग्रामिंग किट आती है जिसमें आप अपने मॉड्यूल को लगाते हैं, उसके बाद आप उसको कनेक्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्टिव जो भी उसकी पिन्स हैं, जो प्रोग्रामिंग की पिन्स हैं, उनको हाई या लो जो भी उसकी डिमांड है वो करते हैं। फिर आप उसको अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं। पीसी में एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से आप उसमें कोड डाउनलोड करते हैं यूजिंग दैट बर्नर। ठीक है, एक बर्नर होता है, एक टूल है, बर्नर इज़ अ टूल जिसके थ्रू आप उसको कोड बर्न करते हैं। तो अब क्या है कि जब आपने 8051 अपने उस वाली किट से निकाल दिया है तो इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड। ठीक है, ऑन इन सर्किट हम उसे प्रोग्राम नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आप 16F84 अगर किसी सर्किट में लगा हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली भी प्रोग्राम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सच थिंग्स। ठीक है, आपने सिंपल उसका कनेक्शंस मेक किए, यू कैन डायरेक्टली प्रोग्राम इट, राइट। तो विथ लिटिल केयरफुल यू कैन प्रोग्राम द माइक्रो कंट्रोलर डिप्राइव्ड ऑफ एलिमिनेटिंग इट फ्रॉम द टारगेट बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल इन सर्किट, राइट। तो आप इन सर्किट भी उसको जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको निकालें देन उसको एक बर्नर किट में एक किट को यूज़ करें और फिर एक बोर्ड लगाएं उसमें इसको इंस्टॉल करें, वो पूरा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दिस अगर मेमोरी की हम बात करते हैं, दिस पिक माइक्रो कंट्रोलर कम्स विद enhanced EEPROM memory. It contains 64 bytes memory that is mainly used to store data, and 1K program memory specifies the capacity of code you can burn inside. तो 1K का मतलब वही है कि 1024 इसकी प्रोग्राम मेमोरी है। ठीक है, 1K का फुल फॉर्म इज़ 1024, और जो डेटा मेमोरी है वो इसकी 64 बाइट्स की, यानी कि यूज़र का डाटा जो आप स्टोर करेंगे वो 64 बाइट्स में स्टोर होगा। जो आपका कोड है, कोड जो है वो आपका 1024 की जो प्रोग्राम मेमोरी वहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, इसमें एक अदद वॉच डॉग टाइमर लगा हुआ है। वॉच डॉग टाइमर क्या है कि द माइक्रो कंट्रोलर हैज़ बिल्ट इन वॉच डॉग टाइमर. There is an internal timer located under the chip. You can make this timer enable or disable by programming. This timer is mainly used to reset the microcontroller when the programmer goes wrong, or it may enter to the infinite loop. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये टाइमर है, इसको आप जो है वो कब इस्तेमाल करेंगे? आप इसको जो है फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कोई कोड बनाया है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां आपका जो आपका पिक का कंट्रोलर है, इट हैज़ बीन इनटू एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है, वो किसी इनफाइनाइट लूप में चला गया, राइट। यानी कि वो उस प्रोग्राम से बाहर निकल नहीं पा रहा। फॉर एग्जांपल कोई लिखने में आपने जो है वो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिख दी जो ऑलवेज सेटिस्फाइड है, तो वो उस लूप से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो हम एक वॉच डॉग टाइमर इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्टली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके 16F84A को खुद ब खुद रीसेट कर देगा, डायरेक्टली रीसेट कर देगा एक फ़िक्स टाइम के बाद। तो ये सिचुएशन इस्तेमाल होती हैं ऐसी सिचुएशन में काम करने के लिए जब कोई डिवाइस माल फंक्शन कर रही हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपकी जगह पे एक्सेस आपकी ना हो, तो आप एक टाइमर लगा देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस जगह पे ये फंसता है एक फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक, तो आप इतने टाइम के बाद इसको रीसेट कर दें। ठीक है, रजिस्टर्स हमारे पास टू टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं। एक GPRs हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ठीक है, जो कि आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और एक वही हमारे फेमस SFRs हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस व्हिच कैन हेल्प टू कंट्रोल द डिवाइस। ये भी हमें पता है कि इसमें कुछ जनरल पर्पस होते हैं, कुछ SFRs होते हैं, राइट। Timer pic 16F contains one 8-bit timer that can be utilized in both ways, timer as well as counter. ये हम देखेंगे किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे हम। ये फीचर जो था ये आपका 8051 में भी था। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसमें दो टाइमर्स थे और दोनों 16 बिट के थे। ठीक है, यहाँ एक टाइमर और एक 8 बिट का है। स्लीप मोड में आ जाते हैं। दिस मोड इज इंक्लूडेड इन द चिप दैट प्रोड्यूसेस अ लो करंट पावर डाउन मोड. द स्लीप मोड कैन बी रिमूव यूजिंग एन इंटरप्ट, एक्सटर्नल रीसेट एंड वॉच डॉग टाइमर. स्लीप मोड में क्या है कि जब आप चाहते हैं कि लो पावर मोड में आपका CPU काम करे, ज़्यादा पावर नहीं कंज्यूम करे, तो हम उसको स्लीप मोड में कर लेते हैं, लाइक द सेम वे वी डू विद आर मोबाइल फ़ोन्स, वी डू विद आर लैपटॉप्स, वी डू विद आर टैबलेट्स, कि हम उसको बिल्कुल लो पावर मोड में कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल रीसेट आता है, कोई इंटरप्ट आता है या वॉच डॉग टाइमर आता है, ये तीन सिचुएशंस अगर आपकी आती हैं तो ये स्लीप मोड भी आपका ख़त्म हो जाएगा, राइट। ऑब्वियसली आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपने रीसेट का बटन प्रेस कर दिया, तो वो स्लीप मोड में तो नहीं रहेगा ना, उससे रीसेट होना होगा। या कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आता है, उसको उसकी ज़रूरत है, कोई काम करवाना है कंट्रोलर से, तो ये भी नहीं कहेगा कि भाई मैं तो स्लीप मोड में हूँ, थैंक यू वेरी मच, वो उसको काम करेगा। एंड सिमिलरली अगर कोई स्लीप मोड आ गया है बिकॉज किसी वो इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ है, तो उसके लिए उसको निकालने के लिए वी हैव अ वॉच डॉग टाइमर, तो वो भी उस फीचर में भी स्लीप मोड आपका ओवर रूल हो जाएगा, राइट।
देन वी हैव अ पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट वही चीज़ है जो हमने 8051 में पढ़ी थी, कि जब हम अपने CPU को ऑन करते हैं तो बाज़ात ड्यू टू योर माल फंक्शनिंग ऑफ एनी डिवाइस, या फिर आपने जो बटन को प्रेस किया उसका डी बाउंसिंग इफेक्ट, ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज योर कंट्रोलर टू गो इन टू एंड ऑन एंड ऑफ स्टेट अगेन एंड अगेन। तो वो क्या करेगा, आपके कंट्रोलर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, प्रॉपर तरीके से वो ऑन नहीं हो पाएगा, मेमोरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस फीचर को करने के लिए हमने क्या कहा था, हमने 8051 में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि हम जब कभी भी रीसेट का बटन प्रेस करते हैं तो उस वक्त हम जब कभी भी हम पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो उस वक्त एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका कंट्रोलर रीसेट स्टेट में रहता है। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम योर कंट्रोलर इज़ इन द रीसेट स्टेट, राइट। उसके बाद वो दोबारा से प्रोग्राम काउंटर में जीरोस डालता है और वो दोबारा से अपना काम स्टार्ट करता है प्रॉपर तरीके से, लेकिन इनिशियली इट इज़ इन द रीसेट स्टेट, ताकि माल फंक्शन कोई डिवाइस ना कर सके, राइट। द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर 8051। मेमोरी बैंक्स, द रैम कंसिस्ट ऑफ 4 बैंक्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रजिस्टर के 4 बैंक्स थे, सर यहाँ पे भी 4 बैंक्स हैं। बिफोर एक्सेसिंग एनी रजिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम राइटिंग यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर बैंक विच कंटेन्स दैट रजिस्टर। ठीक है, ये भी भाई सेम बात है, जैसे हमने वहाँ पे आपके जो 4 बैंक्स थे वो आपकी रोम की मेमोरी में थे, यानी कि आपकी जो मेन मेमोरी थे उसमें थे 00 से लेके आई थिंक FF तक 4 बैंक्स आपके थे, राइट। इसमें भी आपके 4 रजिस्टर के बैंक्स हैं। किसी भी बैंक्स में आपने जाना है तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट बैंक, जो जैसे कि हम 8051 में एक रजिस्टर इस्तेमाल करते थे PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, जो कि SFR से मौजूद था। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के अंदर ये PSW का रजिस्टर मौजूद है, जिसमें हम 00 सेलेक्ट करके बैंक 0 सेलेक्ट करते थे, 01 सेलेक्ट करके बैंक 1, 10 करके बैंक 2, 11 करके बैंक 3। सिमिलरली इसमें भी आपके पास 4 बैंक्स हैं, इनको सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी पहले, राइट। अब ये एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, LED ब्लिंकिंग एग्जांपल, जिसमें ये वाला पार्ट आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं कि इट्स अ रीसेट पार्ट। अगर मैं इसको प्रेस करूँगी यहाँ 0 जाएगा एंड दिस विल सिंपली क्लियर द मेमोरी, और ये हमारा जब तक प्रेस नहीं है तो जब तक यहाँ पे 5 वोल्ट्स जा रहे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास पूरा एक अदद क्रिस्टल का पार्ट है, जिसमें हम क्लॉक जनरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द कैपेसिटर क्रिस्टल नेटवर्क। हम यहाँ पे क्लॉक दे रहे हैं, क्लॉक जनरेट कर रहे हैं। और जो तीसरा चीज़ है वो हमने क्या किया है, हमने एक पोर्ट के ऊपर, कोई भी आप ले सकते हैं, एनी पोर्ट यू लाइक वट एवर, किसी भी पोर्ट पे आपने एक अदद रजिस्टर लगाया हुआ है, यू हैव पुट ऑन द LED एंड अ ग्राउंड। तो हम सिंपल एक LED को ब्लिंक करवा रहे हैं यूजिंग अ पिक कंट्रोलर, राइट। I'll be going to write a complete program in the C language that can cause your LED to blink, okay. So we are using micro C for pic to write code for LED example। सॉफ्टवेयर का बाज़ात आप लोग पूछते हैं कि मिस कहाँ पे होती है प्रोग्रामिंग, कैसे होती है, सो वी विल बी यूजिंग माइक्रो सी। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट डाउनलोडेबल राइट नाउ, कुछ इनका इशू है राइट विद रिस्पेक्ट टू देयर लाइसेंसिंग, बट जो इंडस्ट्री में जिस पे काम होता है दैट इज़ माइक्रो सी, जिस पे हम अपने कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अब देयर आर 2 रजिस्टर्स यूज फॉर GPIO। जनरल पर्पज़ के लिए हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर है ट्रिस एक्स और एक रजिस्टर है पोर्ट, ठीक है। तो ट्रिस एक्स क्या है और पोर्ट क्या है, वी विल गोइंग टू डिस्कस नाउ। ट्रिस एक्स रजिस्टर क्या है, इट्स अ डायरेक्शन कंट्रोल रजिस्टर, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कंट्रोल रजिस्टर। Initializing any pin with 0 using the TRIS-X register will declare it a digital output, or if you initialize it as 1 it will declare as the pin as a digital input। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं, एक हमारे पास ट्रिस रजिस्टर है, एक हमारे पास जो है वो पोर्ट रजिस्टर है। आप लोगों को मैंने शायद किसी स्टूडेंट ने आपकी क्लास से क्वेश्चन भी पूछा था, आई थिंक अली रज़ा थे, जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि मिस मैंने ये कहीं पढ़ा है, या शायद रेहान थे या शामिल थे, इन तीनों में से कोई एक बच्चा था कि इज़ान थे, सॉरी इज़ान, शामिल या अली रज़ा में से कोई एक बच्चा था, ओके। ये था कि ट्रिस जो है मिस वो ट्रिस एक्स जो रजिस्टर है बेसिकली, मिस आपने ये हमें बात नहीं बताई कि 8051 में जब हमें प्रोग्राम करना होता है कि पोर्ट को एज एन इनपुट, तो हम उसको 1 राइट करवाते हैं पूरी पोर्ट पे, और अगर हम उसको आउटपुट लिखवाना चाहते हैं तो उसको हम 0 लिखवाते हैं। तो आपने हमें ये चीज़ मिस की थी, तो उनको मैंने यही बात मेंशन की थी कि जब हम पिक स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें ये चीज़ आपको मेंशन कराऊंगी, बिकॉज वहाँ पे हम प्रॉपर C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट।
ट्रेस क्या करता है, ट्रेस हमारे रजिस्टर की डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो या तो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा, या तो वो एरो अंदर की तरफ जा रहा होगा या वो एरो बाहर की तरफ जा रहा होगा। अगर वो एरो इनपुट है, वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो आपने उस पोर्ट के ऊपर 1 लिखवाना होगा, ठीक है। डायरेक्शन लिखवाने के लिए आप 1 लिखवाएंगे इनपुट के लिए। और अगर आपका वो रजिस्टर वो पोर्ट जो है आउटपुट है और आप उसको चाहते हैं कुछ डेटा लिखवाने के लिए आउटपुट साइड पे, तो आप वहाँ पे ट्रिस की डायरेक्शन लिखवाएंगे 0, ठीक है। इसकी पहचान याद करने की क्या है कि आउटपुट ओ से स्टार्ट होता है तो आप 0 लिखवाएंगे, इनपुट आई से स्टार्ट होता है तो आप 1 लिखवाएंगे, ठीक है, जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस। अब जब कभी भी आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आपका जो कीवर्ड जो इस्तेमाल होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ट्रिस। दिस वर्ड इज कॉल्ड ट्रिस, राइट। अगर आप पोर्ट ए की डायरेक्शन सेट कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रिस ए। अगर आप पोर्ट बी की डायरेक्शन सेट कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रिस बी, राइट। तो ये तो अगर आपने लिखा ट्रिस ए इज इक्वल टू 0, लेट मी राइट हेयर। अगर आपने यहाँ पे लिखा इस तरीके से लाइक ट्रिस ए इज इक्वल टू 0, तो अब इससे क्या हुआ, आपके जो पोर्ट ए में 5 क्या कहना चाहिए 5 पिन्स थी, 5 की 5 पिन्स आपकी क्या हो गई, आपकी आउटपुट हो गई, राइट। ऑल ऑफ देम आर डिफाइंड एज आउटपुट, ठीक है। 0 एंड 0 इज आउटपुट। 0 0 मैं किसे कह रही हूँ, दिस इज 0 एंड दिस इज ओ, दिस इज आउटपुट, ठीक है। अगर आप लिखते हैं ट्रिस बी इज इक्वल टू 1, अब क्या होगा कि पूरा का पूरा पोर्ट बी आपके पास क्या डिफाइंड हो गया है, एज एन इनपुट। सॉरी फॉर द बैड राइटिंग बट वी कांट हेल्प इट, इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पोर्ट ए पूरा आपका डिफाइंड हो गया एज ए आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन एनी पोर्ट एज एन इनपुट और एन आउटपुट, राइट। आप ये भी लिख सकते हैं ट्रिस ए इज इक्वल टू 1, आप ये भी लिख सकते हैं ट्रिस बी इज इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो आउटपुट डिफाइंड हो जाएगा, अगर 1 होगा तो इनपुट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अब द नेक्स्ट थिंग क्या हुई, हमारी जो नेक्स्ट बात क्या है वो ये कि अब मैंने आपसे कहा कि मुझे पूरे पोर्ट को डिफाइन नहीं करना, मुझे किसी एक पिन को डिफाइन करना है, ओनली 1 पिन, राइट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, वी विल गोइंग टू राइट ट्रिस बी डॉट बी 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, पोर्ट बी की पिन नंबर 0 पे आउटपुट एज एन आउटपुट डिफाइंड हो गई है, राइट। पोर्ट बी की डॉट कौन सी पिन, पिन नंबर 0 डिफाइंड हो गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं ट्रिस ए डॉट बी 0 इज इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा, ट्रिस ए यानी कि पोर्ट ए की पिन नंबर 0 डिफाइंड हो गई है। बात समझ में आ रही है। सो आपने इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी दिस रजिस्टर, सॉरी let me take a pointer again. This register is used to define GPIO pins either as a digital input or output. Port A has a tris A register and port B has a tris B register, इसलिए हमने ऊपर लिखा है tris X register. Both these registers are bit addressable. For example, if you want to define RB0 pin as digital output pin, follow the command that will declare this. This is the command. Port B की bit number 0 को output define कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज पोर्ट बी, अभी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। पोर्ट बी की पिन नंबर 1 को इनपुट डिफाइन कर दो, दिस इज 1। पोर्ट बी की पिन नंबर 2 को आउटपुट डिफाइन कर दो। पोर्ट ए की पिन नंबर 3 को इनपुट डिफाइन कर दो। डोंट थिंक कि अगर यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए आएगा। दिस इज बी, दिस इज शोइंग द बिट नंबर, यानी कि बिट 3 B0 B1 2 3 4, ठीक है। तो ये बी हमेशा बी रहेगा, ये ए बी यहाँ वाली जगह पे चेंज होगा, ठीक है। पोर्ट ए की पिन नंबर 4 को आउटपुट डिफाइन कर दो। पूरे पोर्ट बी को आउटपुट डिफाइन कर दो। पूरे पोर्ट ए को इनपुट डिफाइन कर दो। ऑल दो, ये 2F का मतलब क्या हुआ कि वी हैव 8 वंस, तो हमने यानी कि पूरे पोर्ट ए को डिफाइन कर दिया है एज वंस। अब कुछ के जहन में ये सवाल आएगा कि मिस पोर्ट ए में तो आपने बताया था सिर्फ 5 हैं, तो बाकी के 3 वंस, बाकी के 3 वंस इग्नोर हो जाएंगे। शुरू के जो 5 वंस की मदद से ये पूरा का पूरा पोर्ट क्या होगा, एज एन आउटपुट एज एन इनपुट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पोर्ट की डायरेक्शन को डिफाइन कर लिया कि पोर्ट किस तरीके से काम करेगा, इनपुट लेना है कि आउटपुट लेना है, ठीक है।
अब अगर आपने उसको आउटपुट डिफाइन किया है तो उस पर वैल्यू क्या लिखवानी है, उसको लॉजिक हाई लिखवानी है या लॉजिक ज़ीरो लिखवानी है, दैट इज़ डन बाय यूजिंग पोर्ट कीवर्ड। बात समझ में आई है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले डायरेक्शन डिफाइन की, डायरेक्शन किससे डिफाइन की, ट्रिस से, कि वो इनपुट है कि आउटपुट है, ठीक है। अगर वो आउटपुट है तो उस पर लिखवाना क्या, उस पर लिखवाना है वैल्यू 1, तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे। वैल्यू 0 लिखवानी है तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे हमने कहा पोर्ट बी की जो पिन नंबर 1 थी जिसको आपने आउटपुट डिफाइन किया था उस पर 1 लिखवा दो, बिट 0 थी उस पर 1 लिखवा दो। पोर्ट बी की जो पिन नंबर 1 थी उसको उसकी जो हमने एज एन आउटपुट डिफाइन की थी उस पर 0 लिखवा दें। पोर्ट ए की जो पिन नंबर 3 है उसको जो हमने आउटपुट डिफाइन किया था उस पर हमें 1 लिखवाना है, लॉजिक हाई लिखवानी है, 5 वोल्ट लिखवाना है। पोर्ट ए की जो पिन नंबर 3 है उसको हमने आउटपुट डिफाइन किया था बाय यूजिंग द सी हेयर, बाय यूजिंग द ट्रिस कीवर्ड, ठीक है। उस आउटपुट के ऊपर हमने वैल्यू क्या लिखवाई है, हमने 0 लिखवाई है। इसका मतलब है कि हम उसको लॉजिक लो लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क। वी हैव स्टडीड 2 कीवर्ड्स, एक ट्रिस हमने स्टडी किया है, एक पोर्ट किया है। ट्रेस उसकी डायरेक्शन सेट करता है, पोर्ट उसमें जो बात लिखवानी होती है, जो डेटा लिखवाना होता है वो डिफाइन करता है, राइट। दोनों के दोनों बिट एड्रेसेबल हैं। अगर आप बिट को रेफर करें तो आप डॉट डाल के उस पिन का एड्रेस लिख दीजिए, वहाँ पे चला जाएगा, राइट। एंड अगर आप पोर्ट ए को रेफर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ट्रिस ए पोर्ट ए, अगर आप पोर्ट बी को रेफर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ट्रिस बी पोर्ट बी, ठीक है। सो दिस इज़ अ कोड जो कि हमने बेसिकली, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम एलईडी को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक एलईडी काम करती है। सबसे पहले हमने लिखा है वॉइड मेन, ऑब्वियसली सी का कोड हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है, ट्रिस बी डॉट बी 0, क्योंकि अब एलईडी आउटपुट है, ठीक है। तो हमें इस पोर्ट को आउटपुट की तरह डिफाइन करना है। कहाँ पे एलईडी लगी हुई है, बी पे लगी हुई है, यानी कि इट्स अ पोर्ट बी। तो मैं क्या लिखूंगी, ट्रिस बी। तो मैंने सबसे पहले लिखा ट्रिस बी, बिकॉज की डायरेक्शन बता रही हूँ अभी मैं। कौन सी पिन पे लगी हुई है, बी 0 पे लगी हुई है, तो मैंने लिखा ट्रिस बी डॉट बी 0। क्या डिफाइन करना है, आउटपुट, क्योंकि इस पे एलईडी लगी हुई है, हमें आउटपुट देना है इसको, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट लाइन, राइट। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा पोर्ट बी, अब हम इस पे डेटा लिखवा रहे हैं, पोर्ट बी की बी 0 के ऊपर 0 लिख दो, यानी कि इनिशियली एलईडी ऑफ है, हमने 0 लिख दिया। वाइल 1, जब अब मतलब ये वाला लूप कंटिन्यूसली चलता रहे, पोर्ट बी की बिट 0 पे 1 लिखवाओ, यानी कि अब एलईडी ऑन हुई। डिले कॉल किया आपने 1000 मिली सेकेंड्स का, यानी कि 1 सेकेंड का। फिर पोर्ट बी 0 पे आपने 0 लिखवाया, दोबारा से डिले ऑन किया, एंड दिस विल गो फॉर एवर एंड द एलईडी विल कीप ऑन ब्लिंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, हमेशा पोर्ट्स को डिफाइन करेंगे कि वेदर इट इज़ एन इनपुट और एन आउटपुट। फिर आप में जो भी वैल्यू पोर्ट पे लिखवानी होगी वो आप पोर्ट के कीवर्ड से लिखवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन कर देते हैं कि दिस लाइन इज़ फॉर द डायरेक्शन। इसके बगैर अगर आप डेटा लिखवा रहे हैं तो वो नहीं अंडरस्टैंड करेगा। और जो ये वाली जो चीज़ है आपके पास पोर्ट बी वाली, दिस इज़ बेसिकली द डेटा जो आप इस पर लिखवाना चाह रहे हैं। अब आपके जहन में हो सकता है ये सवाल आ रहा हो कि मिस आप ये हमें डायरेक्शन क्यों सेट करनी पड़ती है। डायरेक्शन चाहे आप 8051 की प्रोग्रामिंग करते हैं तब भी आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमने आईओ इंटरफेसिंग इतनी पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहाँ डिस्कस ये टॉपिक नहीं किया। तो आपको ये हर जगह लिखानी पड़ेगी, बिकॉज हमारी जो ये जो पिन्स हैं, आपकी जो ये जो पिन्स लगी हुई हैं, दीज पिन्स, ये जो लगी हुई होती हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। देयर आर पुल अप पुल डाउन रजिस्टर्स, यहाँ पे आपके पास ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ताकि ये इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस को सही तरीके से मैच कर सकें, ठीक है। तो हम इसको 0 और 1 करके, हम अगर मैं इसको 0 डिफाइन कर रही हूँ, यानी कि मैं आउटपुट डिफाइन कर रही हूँ, तो क्या होता है कि आउटपुट की इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और हम अपना डाटा ईजिली लिखवा सकते हैं, ठीक है। और इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि हम बाहर से कोई भी डाटा अंदर नहीं ले सकते, लेकिन आउटपुट की बहुत अच्छी सी लो की हुई है, आराम से जो डाटा भेजा है वो विदाउट एनी ड्रॉप हुए फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। अगर मैं इस पर 1 लिखवाती हूँ तो हमारे अंदर जो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इस तरीके से 1 लिखने से चेंज हो जाती हैं कि आपकी जो इम्पीडेंस है
वो आपकी फिर अगेन चेंज होती है, इट वेरीज, और अब वो इनपुट इम्पीडेंस को बहुत लो कर देती हैं कि जो भी डाटा है वो हम आपके कंट्रोलर पे लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये 1 0 प्ले नहीं किया तो होगा क्या कि इनिशियली सबको 0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको आउटपुट पोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, इनपुट की तरह नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये भी वेरी करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट किस वाले मोड में है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा डेटा शीट से। सो द बेस्ट वे आउट इज़ टू फर्स्ट डिफाइन द डायरेक्शन कि आपने लिखना किस डायरेक्शन में, इनपुट के तौर पे आउटपुट के तौर पे। देन आपने जो भी डेटा वाला अपना काम करना है आप वो करेंगे, सही। तो ये वाला जो कोड है ये आप, अगर आपके पास घर में प्रोटियस इंस्टॉल्ड है तो आप लोग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें ये वाला सिंपल सर्किट बनाइए, आपके सामने पूरा सर्किट मौजूद है, उसको प्रोग्राम करिए, चला के देखिए कि हो चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस लेक्चर विल बी विल कवर, यू विल कवर इन दिस वीक एंड हाफ इन द नेक्स्ट वीक। तो ये आप एक नेक्स्ट वीक का भी एक लेक्चर अपलोड मैं भी कर रही हूँ इसके साथ। इस हवाले से कोई सवाल हो आप लोगों का तो you are most welcome to start to question me during your session or on the WhatsApp. हमने अभी तक पिक जो कंट्रोलर, जो आज का टॉपिक ये जो हमने स्टार्ट की, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ये कोई मैं आपसे फॉर्मली इसकी पिन्स नहीं पूछूंगी, ना मैं आपसे याद करने को कहूँगी। द पर्पज़ इज़ टू शो यू दैट दिस माइक्रो कंट्रोलर इज़ ऑल्सो आइडेंटिकल टू वट यू हैव स्टडीड बिफोर, दैट इज़ 8051 and AVR 80 MEGA 328, right? This is just to show that the programming style is the similar, keywords are the similar, overall the clock structure is the similar, the reset structure is the similar, the pins are the similar, there are not much difference, ठीक है। फॉर्मली हम जो हैं वो इसकी प्रोग्रामिंग इनपुट एंड आउटपुट की स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीक प्रॉपर तरीके से। देयर यू कैन सी दैट हाउ थिंग्स विल गो ऑन फर्दर। पहले हम आईओ इंटरफेसिंग पढ़ेंगे, फिर हम सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम टाइमर्स ही पढ़ेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।